discuss quadratic equation. If you have any problem in linear equation, then you may discuss. Otherwise, I am going to discuss about the quadratic equation. I hope कि all of you have solved the question what I have given to you. Okay. Tell me. Question number 35, which was discussed today. Question number one third of a bamboo pole. अच्छा अच्छा. So let us see. Here one third of a bamboo pole is buried in mud. So let the length of bamboo pole equal x meter. ठीक है? METRE होता है x meter. Let the length of bamboo pole is x meter. Now according to question, कह रहा है कि one third of pole is buried in mud. Buried in mud. Buried in mud equal x upon 3. One third. One third means x का 1 upon 3. 1/6 of it is in water. In water, 1/6 means x upon 6. And the part above the water is greater than or equal to 3 meters. अब देखो remaining part equal, say if the bamboo pole is x meter and one third is in mud and in water 1/6, so sum these two and subtract from total x, you will get the part above the water. ठीक है? That will be the remaining part. जैसे मान लो अगर सपोज दैट ये टोटल बम्बू पोल है एंड बम्बू पोल में इतना जो है ये पार्ट x अपॉन 3 मड में है और यहाँ से x अपॉन 6 जो है वाटर में है. ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा इसको आपको फाइंड करना है. तो जस्ट रिमेनिंग पार्ट x माइनस x upon 3 plus x upon 6. This is the remaining part. But the question in the question it is given and above the water is greater than or equal to 3. मतलब ये जो पोर्शन है ये या तो ग्रेटर है या इक्वल देन 3 है. This is the equation. And then it is asking find the length of the shortest pole. So just simplify this one. Here the LCM of 3 and 6 is 6. So this is equal to x minus 2x plus x divided by 6 is greater or equal than 3. So x minus 2x and x, 3x divided by 6, 3x divided by 6 is greater or equal than 3x. 6x minus 3x ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 into x, 6x minus 3x, 3x divided by 6. नोट डाउन विश्वेश, इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ बताएं.
अच्छा, now 6 into x, 6x minus 3x divided by 6 is greater or equal than 6x minus 3x. 3x divided by 6 is greater or equal than 3 cancel out here. Then this is x by 2 is greater or equal than 3. Now do the cross multiply. X is greater or equal than 6. Okay. Now here what you have seen here, the value of x is either equal to x or greater to sorry, either equal to 6 or greater than 6. But the question is asking the shortest length. Shortest length will be 6 क्योंकि minimum 6 है, 6 से ऊपर चाहे जितना जा सकते हो. तो hence the आपसे shortest length of the pole equal 6 meter. क्लियर? क्योंकि शॉर्टेज 6 होगा, सबसे कम 6 ही है, क्योंकि इसके बाद 6 के ऊपर चाहे जितना हो सकता है. तो शॉर्टेस्ट की बात आपसे किया हुआ है, तो शॉर्टेस्ट इज व्हाट 6 मीटर. क्वेश्चन इज क्लियर? हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 10. एक बार रीड करोगे क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन एक बार रीड करोगे आप? हाँ रीड करो. यस यस यस. हाँ x बिलोंग्स टू n, यही है ना? ठीक है ठीक है. See, question number 10. 11 minus 2x divided by 5 is greater or equal than 9 minus 3x divided by 8 plus 3 by 4. X belongs to n. 11 minus 2x by 5 is greater 9 minus 3x by 8 plus 3. Here is a single inequation क्योंकि एक ही दे रखा है, इसमें सेपरेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है. See, LCM of 5, 8 and 5, 8 and 4. What is the LCM of these three? 5, 8 and 4 का LCM कितना आ जाएगा? 40. ठीक है ना? ठीक है, तो 40 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो. 5 8 जा 40. 11 minus 2x into 8 is greater or equal than 9 minus 3x into 5 or plus 3 into 4 10 जा 40. 40 का ही तो मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 40 एलसीएम है तो 40 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे. 5 8 जा 40, 8 5 जा 40, 4 10 जा 40. बाकी 10 तो दोनों तरफ एलसीएम होगा, कैंसिल हो जाएगा. Now just simplify. 11 8 जा 88 minus 16x is greater or equal than 5 9 जा 45 minus 15x or plus 30. Now you have to find the value of x. This is minus 16x and transpose minus 15 to the left side plus 15x is greater or equal than 40 and 30. 75 minus
88 transpose to the left side, right side, minus 88. So this is minus x is greater or equal than 75 में से 85 88 माइनस करेंगे कितना आएगा बोलो minus 13. Now here is negative x, so change all the signs. X is less or equal than 13. Now, since x is a natural number, then the solutions are what? या तो 13 है या 13 से less है. तो solution set आपको क्या मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Up to 13. क्योंकि these x is a natural number and x की वैल्यू 13 के इक्वल भी है या 13 से लेस है तो 1 to 13 are the Ananya Mishra. Ananya Mishra, have you asked this question? Who have asked this question? Reply student, किसने पूछा था इस क्वेश्चन को? Okay. Okay. अब तो कोई दिक्कत नहीं बेटा किसी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 23 एक बार रीड करो ताकि हम क्वेश्चन टैली कर लें आप क्वेश्चन बोलो मैं टैली कर लूंगा तुम्हारी पुरानी बुक है क्या चलो तो बेटा मेरे पास पुरानी भी बुक है मैं इसी से तुम्हारा क्वेश्चन देखता हूँ कौन सा है कहाँ गया solve the inequation 23 minus 23 minus 3 is less or equal than 3 minus 2x is less than 9 x belongs to R यही क्वेश्चन है ना minus 3 is less or equal than 3 minus 2x is less than 9 for every x belongs to R see here x is a real number then there are two inequation देखो यहाँ पे two inequation है एक यहाँ है और एक यहाँ तो separately you will do two separate inequation the first one is minus 3 is less or equal than 3 minus 2x and the second one is 3 minus 2x is less than 9 दो separate inequation आप यहाँ से find करोगे minus 2x transpose this side this will be 2x is less or equal than 3 plus 3 देखो minus 2x को इधर ट्रांसपोज कर देंगे plus 2x और minus 3 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे plus 3 तो 2x is less or equal than 6 x is less or equal than 6 divided by 2 x is less or equal than 3 क्लियर है इधर का सॉल्यूशन क्लियर है माइनस 3 ट्रांसपोज कर दो इधर 3 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 2x इधर ला देंगे प्लस 2x हो जाएगा 2x is less or equal than 6 2 से डिवाइड किया 6 divided by 2 equal 3 so x is less or equal than 3 and this section minus 2x is less than 9 minus 3 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो minus 2x is less than 9 minus 3 6 so minus x is less than 2 3 जा 6 केवल अभी 2 से डिवाइड किया since x is negative so change the sign x is greater than minus 3 अब देखो x रियल नंबर है और x की वैल्यू
-3 से ग्रेटर होगा, -3 से ग्रेटर होगा, लेकिन 3 के इक्वल है या 3 से कम है। तो इधर राइट साइड में आपका क्लोज्ड इंटरवल बनेगा और लेफ्ट साइड में ओपन इंटरवल बनेगा। मतलब ये -3 इधर आएगा और जो 3 का क्लोज इंटरवल इधर आएगा। ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा। अब इसमें ऐसे लिखोगे -3 इज लेस देन x इज लेस और इक्वल देन 3 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। ये तो सॉल्यूशन सेट हो गया। अब अगर आप रिप्रेजेंटेशन करना है इसको नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सपोज इट 0 है, तो 1 2 3 -1 -2 -3, ये -3 है, ये +3 है। +3 पे आप ब्लैक बॉल बनाओगे और -3 पे ओपन बॉल। क्यों? क्योंकि -3 इज नॉट इंक्लूडेड। So this is the solution. Clear? This is the representation and this is the solution set. हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। एक बार रीड करो क्वेश्चन बेटा, थोड़ा हम टैली कर ले। ओके ओके ओके, हो गया हो गया। 12, क्वेश्चन नंबर 20 है। 12 plus 1 whole 5/6 x is less or equal than 5 plus 3x x belongs to R. Now in this question there is a single inequation, so there is no need to separate and you can't separate also, there is one equation. Now just change this mixed fraction into improper fraction. So 6 into 6 or plus 5 is equal to 11। पहले आप चेंज करोगे तो 12 plus 11 upon 6x is less or equal than 5 plus 3x। Now tell me what is the LCM? बोलो LCM क्या है? 6। Then multiply by 6 in whole the term। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 into 6 72, ठीक है, एंड प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 11x is less or equal than, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30 और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 6 3 जा 18x। ठीक है बेटा। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का सीधा तरीका, जो डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यूज है सबका एलसीएम लेकर के और मल्टीप्लाई कर दो, ताकि डिनोमिनेटर का मतलब काम ही खत्म हो जाए। ना देखो 11x minus 18, 11x और 18x को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, -18x is less or equal than 30 minus 70। 11x और 18x transpose to the left side, -18x, 30 is here, 72 transpose to the right side। Now 18 minus 11 -7x is less or equal than 30 में 72 माइनस करेंगे कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 47, सॉरी 42। ठीक है। अब देखो -x is less or equal than -6, क्योंकि 7 से 42 में डिवाइड करोगे तो 7 6 जा 42। Now there is a negative sign, so change this one, x is greater or equal than 6। So the value is either equal to 6 or greater than 6। So just see, this is the zero line. Suppose that this one is 0, this one 0, 1 2 3 4 5 6, and this is marked this one as a 6। Now the value is what? Either
equal to x, 6 or greater than 6, so put here black ball and mark the arrow on the right hand side, क्योंकि राइट हैंड साइड में ही वैल्यू बढ़ेगी। x की वैल्यू या तो 6 है या 6 से ग्रेटर है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ solution set on the number line. X is greater or equal than 6. X belongs to R. Clear? अब आगे बताएं बेटा कि और भी कोई क्वेरी है। अगर आप लोग सॉल्व करोगे देखो, जो आप प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल वन वेरिएबल में पढ़े हो, सिर्फ वैसे ही करना है। बस अंतर इतना है कि इसमें इक्वेशन लगा रखा है। इन इक्वेशंस को हमने आपको बता दिया है कि पहले इक्वल के ही तौर पे लेके सॉल्व करना है। बस x की जब निगेटिव वैल्यू आएगी वहां ध्यान रखना, जब निगेटिव x होगा वहां पे चेंज, जब जैसे निगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे तो सब साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। हाँ, रियल नंबर का नहीं लिख पाओगे ना बेटा, रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं ना। सॉल्यूशन सेट में रियल नंबर, आई एम नॉट हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन सेट। अनामिका यादव, क्या प्रॉब्लम बेटा? देखो अभी जस्ट यू हैव रिप्लाइड कि यू डोंट नो हाउ टू गेट द सॉल्यूशन सेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, कैन यू सॉल्व दिस इन इक्वेशन? अब देखो, अब सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे देख लो। जब आपने इन इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ x की वैल्यू कितना आया? x is greater or equal than 6। तो अगर x की वैल्यू 6 है या 6 से ग्रेटर है तो ग्रेटर रियल नंबर लाइन पे लेफ्ट में जाते हैं या राइट में? राइट राइट, ग्रेटर बेटा, ग्रेटर की बात करें, नंबर लाइन पे ग्रेटर नंबर राइट में चलते हैं या लेफ्ट में? राइट में। तो अगर यहाँ पे रियल नंबर लाइन पे 0 है तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है या तो 6 है या 6 से ग्रेटर है। तो पहली बात यहाँ ब्लैक बॉल बना दो क्या, ताकि x की वैल्यू 6 मिल जाए। अब 6 से ग्रेटर, ये 6 से ग्रेटर सिर्फ बता रहा है, 6 से ग्रेटर कहां तक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, अप टू इनफाइनाइट। क्योंकि x की वैल्यू यहाँ देखो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है। अब 6 से ग्रेटर 7 8 9 10 11 12 जहां तक चले इनफाइनाइट, तो आप क्या करोगे, यहां से एरो बना दोगे और ये एरो का डायरेक्शन राइट साइड में दिखा दोगे, वो शो कर देगा कि 6 की x की वैल्यू 6 है या 6 से ग्रेटर इनफाइनाइट तक, ठीक है। और ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू फाइंड कर रहे ना, तब देखना वो वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है। क्लियर हुआ? और कोई क्वेरी बेटा किसी को? मिलिंद सरोज, मिलिंद सर प्लीज सॉल्व। बेटा जस्ट टेल द क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर। मिलिंद क्वेश्चन नंबर बोलो। दिस इज फ्रॉम चैप्टर टेस्ट, ओके। तो चैप्टर टेस्ट में, चैप्टर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा। देयर आर क्वेश्चन नंबर 7।
2x minus 3 2 2x minus 3 is less or equal than x plus 1 minus x divided by 3 is less than 2 upon 5x. ठीक है, x belongs to R. 2x minus 3 is less or equal than, sorry, greater or equal than x plus 1 minus x divided by 3 is greater than 2 upon 5x. यही क्वेश्चन है ना? दिस इज द क्वेश्चन. कंफर्म करो क्वेश्चन. यस. चलो देखो क्वेश्चन. There are two inequations, so just separate two inequations. Anamika, Anamika, are you listening? बेटा इस क्वेश्चन को भी ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि आप सॉल्यूशन सेट में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसमें भी अगर कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखना. There are two inequations, so just separate these two. 2x minus 3 is greater or equal than x plus 1 minus x divided by 3. ये यहां तक इनिक्वेशन आएगा क्योंकि इसके बाद दूसरा इनिक्वेशन शुरू हो रहा है. The next is x plus 1 minus x divided by 3 is greater than 2 upon 5x. अब आपसे सिंपल बोला है कि जो एलसीएम है उसे मल्टीप्लाई कर दो. तो बोलो इधर एलसीएम कितना है? इधर कितना एलसीएम? 3. तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6x minus 3 3 जा 9 is less or greater or equal than 3 into x. 3x और जब यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 1 minus x रह जाएगा. Now 6x and 3x, देखो यहाँ 3x और minus x 2x हो गया, तो 6x minus 9 is greater or equal than 3x minus x. 2x plus 1. Now transpose 2x to the left side. 6x minus 2x is greater or equal than 1 plus minus 9 transpose to the right side plus 9. Now 6 minus 2, 4x is greater or equal than 10, then x is greater or equal than 10 divided by 4. And 4 means 2 2 ja 4, 2 5 ja 10. That means x is greater or equal than 2.5. तो x की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है 2.5. ये तो पहला इक्वेशन है. अब इधर चलेंगे दूसरा इक्वेशन. What is the LCM of these two? 15. तो 15 का यहाँ मल्टीप्लाई करो 15x प्लस यहाँ देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 जा 15. तो 5 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे 5 minus 5x is greater than 5 3 जा 15 3 2 जा 6x. ये तो क्लियर है भाई. 15 का मल्टीप्लाई करोगे 15 into x 15x, यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 5 जा 15, 5 into 1 5, 5 into x minus 5x, यहाँ 5 3 जा 15, 3 2 जा 6. ये एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दिया. अब 15x 6x देखो इधर से हम 15x minus 5x 10x plus 5 is less greater than 6x. 10x में से 6x इधर माइनस करेंगे 10x minus 6x is greater than minus 5. minus 5 उधर गया. Now 10x minus 4x, this is equal to 6x is equal to 4x is greater than minus 5. So x is greater than minus 5 divided by 4. अब divided by 4 means x is greater than minus, अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो minus 1.5 0.125 ना, -1.25. अब सुन लो यहाँ पे आपको
x की वैल्यू -1.25 से ग्रेटर है और ये वैल्यू 2.5 से ग्रेटर है, तो रब कर दे बेटा इसको। मिलिंद रब कर दे, नोट कर लो, रब कर दे रहे। ओके, इसको इतना रब कर दे रहे, बाकी नीचे का छोड़ दे रहे। सही। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गया x इज ग्रेटर देन -1.25 और x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 2.5। ठीक है, अब नंबर लाइन पे जरा देखना है इसको, सॉल्यूशन सेट बता दे रहे हैं तुम्हें। अगर नंबर लाइन पे देखना, अगर ये जीरो है, ये माइनस, ये जीरो मान लो, -1 मान लो, और यहाँ सपोज है कि -1.25, ये सपोज है -1 -1.25, इसको सपोज करो यहाँ पे, क्योंकि जीरो के बाद -1 आएगा और -1 के बाद -1.25 आएगा, इधर 1 2 और 2, ये 3 मान लो, 2.5 यहाँ पे सपोज है, ये आ जाएगा। अब जो x की वैल्यू है वो -1.25 से ग्रेटर है, तो जब ग्रेटर का मतलब यहां से इधर चलेंगे और यहां से राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज है वो सब आ जाएंगी। देखो, अगर ये -1.25 है, यहाँ तो ओपन इंटरवल है, ऐसे ब्लैक बॉल नहीं है, व्हाइट बॉल है, और यहाँ से जितने भी नंबर आएंगे -1.25 से राइट साइड में, वो सभी नंबर आ जाएंगे। और जब इस 2.5 की बात करेंगे तो 2.5 पे वैल्यू या तो 2.5 है, या देखो ये या तो 2.5 है या 2.5 से ग्रेटर है। अब दोनों में बात करते हैं कि दोनों में कॉमन क्या आएगा। दोनों अगर इन इक्वेशन में देखते हैं तो बोलो बेटा कॉमन क्या आएगा, रियल नंबर है ना, x रियल नंबर है ना, x इज व्हाट, रियल नंबर। बोलो बेटा रियल नंबर है, तो अगर x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, तो x कॉमन वैल्यू क्या आएगा, कॉमन वैल्यू देखो यहाँ 2.5 आएगा या 2.5 से ऑनवर्ड आएगा, तो सॉल्यूशन सेट कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट जो होगा वो x इज ग्रेटर और इक्वल देन 2.5 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ये सॉल्यूशन सेट होगा। और नंबर लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा यहां से इधर का होगा, ये तुम्हारा ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होगा, इतना पार्ट छूट जाएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं आएगा। क्लियर हुआ मिलिन? चलो, आई थिंक टाइम इज ओवर। सर इज हियर, अभी टाइम है सर। हाँ, तो okay students, we'll meet you in the next session with new chapter, that is quadratic equation. Still you have any problem in this chapter, so you may ask. Okay, thank you.